Yes. So start with the second chapter, that is the AC fundamentals. This is the second chapter of our syllabus. Okay. This chapter is little bit lengthy as compared to our first chapter, that is the DC circuits and transducers. So इसमें थोड़ा सा ज़्यादा time लगेगा इस chapter में, because there are lots of analysis, lots of derivations are there. Okay. So firstly, with the AC fundamentals, as we have already discussed in our starting lectures, that what is AC? That is a sinusoidal wave, okay, which continuously changing with the time. That is AC. Okay, it continuously changes with the time. At each instant, here is voltage or current, and upon the x-axis we represent it with omega t. Okay, or in the with the theta, like here is 0 degree angle, here is the maximum angle 90 degree, here is 180 degree up to the positive cycle, and then there is the negative cycle, this 270 degree, then there is the 360 degree, and this will become your one complete cycle. Okay, this is the complete cycle. This is the positive half, this one is the negative half. So this one is the AC wave, which continuously changes at each instant of time. Okay, that's why it is also called as the instantaneous wave. Okay, alternating current bolte hain, full form for the AC is alternating current, and the frequency which is applicable in our India, that is the 50 hertz. 50 hertz frequency के ऊपर चलती है. 50 hertz means, what is the definition for frequency? Frequency means that is the number of cycles per second. कि एक सेकंड में कितने cycles पास होते हैं, that is represented by the frequency. Okay, and in our India there is the frequency of 50 hertz, that means the 50 cycles per second. एक सेकंड में हमारे यहाँ पे 50 साइकिल्स निकलते हैं, एंड दिस फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू फॉर दिस फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. किसी कंट्रीज में ये 55 भी है, कईयों में 48 भी है, किसी में 52.35 भी है. तो इस तरीके से द वैल्यू फॉर द फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. Okay, now tell me one thing. As we said that this is the alternating current, and what is the source for this alternating current? ये AC सप्लाई का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलती है ये? हाँ जी. How this AC is generated? कैसे जनरेट करते हैं हम इसको? Yes, anybody? Yes. How the AC is generated? कैसे बनती है? By rotation of turbine, ma'am. जनरेटर से. By the rotation of turbine, generator से. Actually, what is there in the generator? Generator में क्या है? टर्बाइन ने आगे जनरेटर को ही चलाना होता है ना. ठीक है, पावर प्लांट्स में क्या होता है, जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है, जनरेट हो रही है, दैट इज द एसी. जो हम डिफरेंट पावर प्लांट्स की बात करते हैं, लाइक द थर्मल पावर प्लांट इज देयर, हाइड्रो पावर प्लांट इज देयर, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज देयर. ठीक है, और मेनी मोर डिफरेंट पावर, विंड, सोलर, एवरी. ठीक है, तो मैग्नेट्स और कॉइल्स. yes, it is the combination of magnets and coils. So what is there? So her power plant में there is a turbine, there is a generator. Turbine helps to rotate the generator manually, and then generator generates electricity. Okay. So what is, how the AC is generated? Actually, there are two things. One is the magnetic field. And another is the coil. ठीक है, इन दोनों में से one thing is rotational and another thing is stationary. ठीक है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं. या तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाओगे इन स्टेशनरी कॉइल, या फिर कॉइल को रोटेट करवा दें इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों ही तरीके से वी कैन गॉट एसी जनरेट करवा सकते हैं. ठीक है, अगर जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाना है, तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, लाइक दिस.
ये जस्ट मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना रही हूँ. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर देयर एंड दिस इज लेट अस सपोज द कॉइल अरेंजमेंट. ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाएंगे इन द स्टेशनरी कॉइल. ओके, एंड वी गॉट द EMF, वोल्टेज इज जनरेटेड, AC इज जनरेटेड. या फिर हम क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करवाएंगे इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, दिस अरेंजमेंट विल शोन लाइक दिस. इस तरीके से इसको दिखाया जाता है कि यहाँ पे दिस इज सम द अरेंजमेंट ऑफ कॉइल. इस कॉइल को इसमें रोटेट करवाते हैं एंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी. So in both the ways we got the alternating current, AC is generated. Now tell me one more thing कि हमने बोल दिया अभी ठीक है, either you rotate the magnetic field in the stationary coil or you rotate the coil in the magnetic field. ठीक है, उससे हमें AC मिल रही है, तो AC is generated. Now the value of AC generated depends upon what factors? कितनी AC जनरेट होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Number of turns in Turns in coil coil. and strength of magnet. Yes, one is the N, that is the number of turns. Number of turns के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic strength. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर. Actually, ma'am, the flux that is caught, यस, magnetic flux जो हाँ जनरेट हाँ, होता तो है वो ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही हो जाती है ना एक तरह से. मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, दैट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, है ना. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगी. ठीक है, वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और एनी अदर फैक्टर. Speed of rotating coil. यस, वन इज द स्पीड. जो रोटेशन में है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेशन में, चाहे वो कॉइल है रोटेशन में, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो ये तीनों ही फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी AC की वैल्यू. EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, एंड वन थिंग मोर, आगे हमने जाके करना भी है, वैसे डिटेल में थोड़ा सा करेंगे मशीन्स चैप्टर में. तो लेट अस सपोज कि हमारा जैसे मैग्नेट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉइल है, स्टेशनरी कॉइल है. वन थिंग इज रोटेटिंग, अनदर थिंग इज स्टेशनरी. जस्ट फॉर योर नॉलेज से कि जो स्टेशनरी है दैट वी कॉल्ड इट एज द स्टेटर, इसको हम स्टेटर बोलते हैं. ओके, and the rotating part, whether it is a magnet or it is a coil, this we called as a rotor. ये दो वर्ड्स हैं जो कि हम बार बार यूज करेंगे आगे, मशीन्स के चैप्टर में भी आएंगे हमारे. वन इज द स्टेटर एंड अनदर वन इज द रोटर. एंड इट इज नॉट फिक्स्ड कि स्टेटर हमेशा कॉइल ही होगा और रोटर हमेशा मैग्नेट ही होगा, दैट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, रोटर कॉइल भी हो सकता है, रोटर मैग्नेट भी हो सकता है, तो सिमिलरली स्टेटर भी. ठीक है, सो द पार्ट दैट इज रोटेटिंग in the machine, the rotatory part is called as the rotor and the stationary part is called as the stator. ठीक है, उसको हम stator और rotor के साथ डिफाइन करते हैं. ठीक, नाउ अभी हम पहले पीपीटी देखेंगे क्योंकि पीपीटी में मैंने कैलकुलेशंस वगैरह. यस मैम, वो ग्राफ में ओमेगा टी और थीटा क्या है? बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ थीटा इज द एंगल. ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ पे या तो तुम्हें थीटा के साथ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या फिर तुम्हें ओमेगा टी के साथ मिलेगी. ओमेगा क्या बोलते हैं ओमेगा को? What do you call ओमेगा? वैसे तो ओमेगा टी इज द टाइम पीरियड. ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी.
अभी आगे जाके आएगा सारा कुछ ये डिटेल में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ या तो हम ओमेगा टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा इज एनी एंगल, थीटा लाइक 0 डिग्री पे the wave is at zero position, 90 डिग्री पे the wave is at its maximum location, ठीक है। 180 डिग्री पे फिर 0 डिग्री इंस्टेंट होता है, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम होता है, 360 पे फिर 0 होता है, लाइक दिस, ठीक है। सो थीटा इज डिग्रीज और ओमेगा टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, सो और एंड ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी आगे जाके करते हैं डेफिनेशंस। I am going to share the PPT. मैम इस ग्राफ को बनाना है क्या अभी? It's just an introduction. Just एक कोई introduction है, पता ही है तुम लोगों को ये सारा कुछ। Okay, now see the PPT. That is our second chapter, AC fundamentals, and the various topics under this chapter which we have to cover, that is the peak, root mean square, average value of the alternating current, then the phasor representation of alternating quantities, then the analysis of AC circuit, representation of alternating quantities in the rectangular and polar forms, then introduction of resistive, inductive and capacitive circuits and their series and parallel combinations। एक्चुअली यहाँ पे जाके ना, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत टाइम लगने लग जाता है इस चैप्टर में। concept of resonance in series and parallel circuits, then the analysis of balanced three-phase system with star delta connections। okay, and these topics जो पीछे जाके आएंगे ना हमारे पास, resistive, inductive, capacitive, resonance, three-phase, these topics are very 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 important। हर टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड सो स्टार्टिंग विद द अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current is the current which constantly changes in amplitude and which reverses direction at regular intervals। Yes, switch off your mics. Switch off your mics, everybody. Okay, alternating current is a current which constantly changes in amplitude and which reverses direction at regular intervals। Reverses direction means once it was positive and other time it's negative। ठीक है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। Because the changes are so regular, the alternating voltage and current have a number of properties associated with any such waveform। Alternating current, the voltages of AC sources alternate in polarity and vary in magnitude। देखो इसका continuously magnitude change हो रहा है, ठीक है। magnitude क्या है कि मतलब एक particular instant पे value of that alternating current, कि एक particular time पे what is the value, किसी और instant पे देखोगे तो value change हो जाएगी, फिर अगले instant पे देखोगे तो फिर value change हो जाएगी। sometimes it's zero, sometimes it's positive, sometimes it's negative। actually ये positive और negative हम क्या बोलते हैं, that are the polarities, ठीक है। positive polarity and negative polarity, कि polarity उसकी change हो रही है। voltages produce currents that vary in magnitude and alternate in direction। okay. Now the alternating current, it is a sinusoidal AC waveform, starts at zero। Why do we call it as sinusoidal? Sinusoidal क्यों बोलते हैं इसको? Yes. Why do you call it as? साइन ग्राफ की फॉर्म में। हाँ, because it varies as the sine wave। ठीक है, साइन कोसाइन जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना तुम, तो साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है उसकी। Okay, so that's why it is called as the sinusoidal। A sinusoidal AC waveform starts at zero, increases to positive maximum, then again decreases to zero, then changes the polarity, increases to negative maximum, then again returns to zero। And this variation is called a cycle। इसको एक complete cycle बोलते हैं जिसमें one set of positive values and one set of negative values, that is called as the one cycle।
from 0 to 360 डिग्री और from 0 to 2 पाई, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक की वैल्यूज को वन साइकिल बोला जाता है. Now the generation of alternating voltages and currents, जो अभी हमने डिस्कस किया है बोर्ड पे, कि alternating voltages may be generated by rotating a coil in a magnetic field, as shown in this A part. इसमें coil को rotate कर रहे हैं in the stationary magnetic field, or by rotating a magnetic field within a stationary coil. या तो magnetic field को rotate करवा दो in a stationary coil. And see here the names are also written. The rotating part is rotor and the stationary part is called the stator. ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से alternating voltage current generate किया जा सकता है. So that's why that device is called as a generator. ठीक है, इसीलिए उसका नाम generator रखा गया. Generator means the generation of alternating voltages and currents. Now the equation of alternating voltages and current. So consider a rectangular coil having n turns and rotating in a uniform magnetic field with an angular velocity of omega radian per second. तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला केस बोल रहे हैं. ये consider कि any rectangular coil is rotating in a stationary magnetic field and this coil has n number of turns और ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से वो रोटेट कर रहा है. Then let the time be measured from the x-axis. From maximum flux phi m is linked with the coil when its plane coincides with the x-axis. तो ये रोटेशन दिखाई गई है and these pink lines are the magnetic field, जो कि magnetic field को कट करेंगे. ठीक है, वही आ जाता है इसमें भी Faraday's law का प्रिंसिपल आ जाता है. When the rotating coil, when the coil is rotated in a stationary magnetic field, it cuts the magnetic field. ठीक है, तो उससे क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के आने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिल जाती है. एंड द वेवफॉर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस, the shape of the curve obtained by plotting the instantaneous values of voltage or current as the ordinate against the time as abscissa. Abscissa means x-axis, ordinate means y-axis. ठीक है, y-axis पे voltage या current रहता है, see the first way, और x-axis पे हमारा time period रहता है, time period या फिर degrees या angle. Okay, so these are the various waveforms and this is called waveform or wave. ये definitions हैं छोटी छोटी जो कि करनी है तुम लोगों को. That is the shape of the curve obtained by plotting the instantaneous value of voltage or current as the ordinate against time as abscissa is called wave. तो waveform इस तरह से भी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा disturbance है, it's not a pure sine wave, this is little bit, and ये pure triangular wave आ जाती है, इसमें थोड़ा सा square type आ रही है. So there are different types of AC waveforms are available. ठीक है, तो इसमें प्योर एसी साइनोसॉइडल ही होती है, बट देयर आर समटाइम्स हार्मोनिक कंटेंट्स आर देयर, या फिर हम खुद हार्मोनिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कई एक्सपेरिमेंट्स में. ठीक है, कई बार कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें हम हार्मोनिक्स बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट वी गॉट द डिफरेंट शेप ऑफ दैट एसी वेव. तो हमें कोई और शेप चाहिए तो हम खुद हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. Okay, now this one is again the generating AC voltage. It's just showing the position of coil at different instants. This is see in the first A part, 0 degree position. 0 degree position पे क्या है? Coil sides moves parallel to the flux line. ठीक है, flux की lines भी इधर है, coil की rotation भी parallel है. Since no flux is being cut, तो induced voltage is zero. फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो फ्लक्स इज बीइंग कट, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 0. whereas in the 90 degree position, this is the 90 degree position when the coil and flux lines are perpendicular. The coil and A. हेलो, नहीं सुनाई दे रहा है मैम. Yes, क्या बोल रहे हो?
Coil and A is positive with respect to B. Current direction is out of slip ring A. So this is a 90-degree position. And this is again the 180-degree position. Coil again cutting, no flux, induced voltage is 0. And next is the 270-degree position. Voltage polarity has reversed. Therefore, the current direction reverses. Now next is the definition for frequency. Frequency is the number of cycles per second of a waveform. Okay, this is the definition for frequency. That is the number of cycles per second of a waveform. It is denoted by F. The units for frequency is hertz. Okay, 1 hertz means 1 cycle per second. But in our country, there are 50 cycles per second, so 50 hertz is applicable in India. Next is the time period. The period of a waveform. Time it takes to complete one cycle. एक cycle को पूरा होने में कितना time लगता है? That is the time period. ठीक है? एक cycle को पूरा होने में how much time it takes, right? अगर हम यहाँ पे just एक ही cycle show करेंगे, let's see on the board. So this one is the complete one cycle, okay? And here is omega t, and generally the time period is denoted by capital T, okay? So time period is the time taken by the AC wave to complete one cycle. एक cycle इतना है जिसमें positive half और negative half है, and the time taken to complete the one cycle is called as the time period, and this one is equal to 1 by f होता है. Okay, it is the reciprocal of frequency. Okay. And the unit for the time period is seconds. Next is the peak value of an AC voltage or current. So peak value means the maximum value. ठीक है, if here is voltage या फिर current, so this one is the peak value. Okay, this is the peak value. If it is voltage, you can write it as V max. ठीक है, अगर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो you can write it as I max. Okay, so this is the peak value. This is the maximum positive peak value, and this one is the negative peak value. ठीक है, तो peak values हमारे पास दो आएंगी. One is for the positive cycle and another one is for the negative cycle. So this one is the positive peak value and this one is the negative peak value. Or you can use the word maximum. ठीक है, maximum word भी कई जगह पे use होगा, कई जगह पे peak word भी use हो सकता है. Okay, and next is the see the amplitude. The maximum value positive or negative of an alternating quantity is known as its amplitude. तो यही इसी को हम amplitude भी बोल रहे हैं. This one is also called the amplitude. Okay, so this is called the amplitude for the positive and negative maximums. Next cycle, ये हमने already पढ़ा है. One complete set of positive and negative values of alternating quantity is known as cycle. Okay, cycle में एक ही set positive आएगा और एक ही set negative values का. A cycle may also be sometimes specified in terms of angular measure. In that case, one complete cycle is said to spread over 360 degree और 2 pi radians. ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट आती है साइकिल की. वन साइकिल इज इक्वल्स टू दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, और अगर रेडियंस में कर रहे हो फ्रॉम 0 टू 2 pi radians. Here it is 180 degree or pi radians. Okay.
Now this is the basic sine wave equation. That what is the equation to represent the induced EMF? इसमें काफी इक्वेशंस आ जाएंगी थोड़ी सी. Yes, the induced EMF is generally represented with small e. इसको हम small e के साथ represent करेंगे, and this E can be written as E max sin of omega t. ठीक है, इस तरीके से. या फिर it can also be written as E max sin of theta. ओके, अगर थीटा एंगुलर में रखना है तो यू कैन सिंपली राइट इट एज E इज इक्वल टू E max sin omega t और E max sin of theta, where theta is equals to omega t. Okay, or you can also, and also omega is equal to 2 pi f. एक ये रिलेशन भी होता है ओमेगा का. ठीक है, omega is also equals to 2 pi f. So therefore E can also be written as E max sin of 2 pi f into t. So there are different types of equations by which the sinusoid, by which the induced EMF is represented. Okay. So here small e is the induced EMF. ठीक है, स्मॉल e को क्या बोलना है? इट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड EMF. ये जो लिखा है यहाँ पे E max, दिस इज द मैक्सिमम EMF. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये वाली. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ये कांस्टेंट होती है, ये वेरी नहीं करती है. ठीक है, बट जो इंड्यूस्ड EMF होती है, दिस स्मॉल e, इट ऑलवेज वेरीज विद द t. ये हमेशा टाइम पीरियड के साथ या फिर थीटा के साथ वेरी करेगी. ठीक है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू. ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी. ओके, इंड्यूस्ड EMF is also changing, always changing at each instant of time or angle. ठीक है, but this E max is the fixed value. इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. ओके, okay, so see here in the PPT, voltage produced by a generator E is equals to EM लिखा है, EM sin of alpha लिखा है. अल्फा इज सेम जो मैं वहाँ पे थीटा लिख रही हूँ, that is the same angle. EM is the maximum voltage, alpha is the instantaneous angular position of rotating coil of the generator. Okay, and see here the different forms how the EMF equation is represented. The standard form of an alternating voltage E is equals to EM sin theta, or it can be written as EM sin omega t. ठीक है, वही जो हमने अभी बोर्ड पे लिखा है. whether you write it as EM sin theta और EM sin omega t. एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि क्योंकि हमें इसके कंसर्न में न्यूमेरिकल्स करने हैं आगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में किस तरह की वैल्यू गिवन है? वेदर इन द न्यूमेरिकल द सम एंगुलर एंगल इज गिवन फॉर थीटा या फिर ओमेगा की वैल्यू गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. So in the third step, it is EM sin of 2 pi ft. तो यहाँ पे ओमेगा को रिप्लेस कर दिया है with 2 pi f. Okay. And EM sin of, अब f को रिप्लेस कर दिया है 1 by t के साथ. ठीक है, f is replaced with 1 by capital T. What is capital T? Capital T is the time period. टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, एक साइकिल का टाइम पीरियड है ये. ठीक है, so by closely looking at the above equations we find that the maximum value or peak value or amplitude of an alternating voltage is given by the coefficient of the sine of the time. ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइन ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर. The frequency f is given by the coefficient of
टाइम डिवाइडेड बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो तो दैट इज गिवन बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2 पाई। For example, if the equation of an alternating voltage is given by, if this is the equation given, then its maximum value of 50 volt and its frequency comes out to be, देखो यहाँ पे ओमेगा को 314 लिख दिया मैंने, ठीक है, ओमेगा टी इज दिस, यहाँ पे 314 लिख दिया है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, मतलब 314 को 2 पाई के साथ डिवाइड, ओके। तो इट कम्स आउट टू बी 50 हर्ट्ज, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ तुम्हें, तो वो करके फटाफट मेरे को आंसर बताना अभी। यस, द इक्वेशन गिवन इज, just I'm going to write down here. Yes, it is given that I is equals to 20 sine of 628t. Okay, in this equation, give me the answer for I max and frequency. Just yes, be fast. Give me the answer for I max and frequency. I max 20 and frequency 628 by 2 pi. हाँ, आंसर निकाल के बताओ जरा मेरे को। हंड्रेड फ्रीक्वेंसी। Yes, the frequency is 100. ओके, एक्चुअली हमने इस इक्वेशन को, इनका भी नहीं निकला है, वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड ईएमएफ इक्वेशन, बट ये हमने करंट की फॉर्म में लिखी है। तो इट इज I इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशन, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि आई मैक्स इज इक्वल्स टू 20, I max comes out to be 20 and omega is equals to 628, ठीक है। But this omega is equal to, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ, हमें निकालना क्या है, we want the answer for frequency, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, frequency comes out to be omega divided by 2 pi, that it means 628 divided by 2 pi, and the answer comes out to be 100 hertz, standard unit है frequency के 100 hertz, and current is in the amperes. Okay, so these are the some small numericals related to this. Okay, the next one is the angular velocity, that is represented by this omega, the rate at which the generator coil rotates with respect to time. Okay, it is the actually rotational speed in angular, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेटर रोटेट कर रहा है वो एंगुलर रोटेट कर रहा है, लीनियर नहीं रोटेट कर रहा कि कोई भाग नहीं रहा है जैसे ग्राउंड पे। इट इज द एंगुलर रोटेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओमेगा। The units for omega are revolutions per second, या फिर डिग्री पर सेकेंड, या फिर रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इन तीनों ही तरीकों से इसके यूनिट्स लिखे जाते हैं एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। जिस तरीके से हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा हम उस तरीके से अपने यूनिट्स लिख देते हैं। तो इट मे बी रिटन इन द revolutions per second, degrees per second, or radians per second. Now omega is usually expressed in the radian per second,
तो व्हाट इज 2 पाई? जस्ट द कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं कुछ कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट वी ऑल नो। ठीक है, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई रेडियंस, सी द यूनिट्स, 2 पाई के साथ रेडियंस यूनिट आएगा और 360 के साथ डिग्री लगा है। नाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ओके, अगर किसी भी फैक्टर को डिग्रीज को कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो हम उसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री, अगर रेडियंस में है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई दैट आंसर विद द 180 डिवाइडेड बाय 5। Okay. Now when using a calculator, be sure it is set to the radian mode when working with the angles measured in the radians. And one thing more I want to tell you कि तुम्हारे एग्जाम्स में, बीटेक के एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें +1 2 में आई थिंक सो अलाउड नहीं होते थे, तो बीटेक के एग्जाम्स में, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स चलेंगे अब तुम्हारे आगे, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मेन रहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो कैलकुलेटर्स की प्रैक्टिस रखो, अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस रखो ताकि तुम फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जाम टाइम पे कैलकुलेटर ही कई बार चलाना नहीं आता, वही गलत कर देते हैं। ठीक है, सो बी रेडी विद योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, उनको कैसे यूज करना है तो वो हैबिट बनाओ थोड़ी सी। Be sure it is set to radian mode when working with the angles measured in the radians. Now the relation between omega t and f ये हमने already कर लिया है। तो one cycle of a sine wave may be represented by alpha। ये अल्फा वही है जो मैंने वहाँ बोर्ड पे थीटा लिखा है। ठीक है, इट्स द सेम। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस और t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, and omega t is equals to 2 pi and omega is equals to 2 pi by capital T, and omega is equals to 2 pi f. Here is some of the formulas or the relations between this omega, capital T and f. थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, Theta is the angular displacement. Yes, theta is the angle, है ना, जो हम या तो x एक्सिस पे omega t के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या फिर थीटा के साथ। तो यहाँ पे ये पीपीटी में ना थीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा लिखती है। ठीक है, सो इट्स द सेम, वही चीज है। ठीक है, या तो थीटा लिख दो या ओमेगा टी लिख दो, दैट इज द सेम। नाउ कुछ और टर्म्स आ जाती हैं अब आगे। द नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक इंस्टेंट समझते हो, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जो ई लिखा था ना, स्मॉल ई, तो मैंने उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोला था, दैट इज द इंस्टेंटेनियस या फिर इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाइक दिस इज अवर एसी एंड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लाइक मेरे को यहाँ पे मुझे वैल्यू चेक करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय वोल्टेज। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे आई एम जस्ट ड्राइंग द डॉटेड लाइन हियर, तो दिस इज my instantaneous value at this particular instant, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज या करंट की वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली एट एनी अदर इंस्टेंट दिस इज द वैल्यू। और एसी के केस में क्या है कि हर इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, ई को, स्मॉल ई को, ये वाली चीज। ठीक है, दिस इज द also called as the instantaneous EMF, and instantaneous EMF is E is equals to small e is equals to E max sin omega t। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है,
इसकी फिक्स्ड वैल्यू कहाँ निकलेगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर निकलेगी। अगर वो बोल देंगे कि ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देन हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिल गया कि हमने ओमेगा टी 30 के ऊपर ई की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी अभी आएंगे आगे, ठीक है, कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, या फिर सीधा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, लाइक दिस। तो वहां पे हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमें एक इंस्टेंट दे दिया है उन्होंने, so that is called as the instantaneous value of voltage or current. Okay, and the next definition is average value. The average value of an alternating current or voltage is the average of all instantaneous values during one alternation. ठीक है, अब यहाँ पे alternation क्या है? Alternation means one half cycle. Okay, what is one alternation? Alternation means one half cycle. Either it is positive half or it is negative half. तो half cycle को हम alternation बोलेंगे. Okay, तो half cycle के ऊपर सभी instants की जो value आ रही है, तो that is called as the average value. And since the voltage increases from 0 to peak value and decreases back to 0 during one alternation, the average value must be some value between those two limits. तो average value वहीं से निकली, सारे instants की values को sum up कर देंगे and we got the average value. अच्छा बताओ, अगर complete cycle के ऊपर average value निकालनी हो तो कितनी आएगी? 0। Yes, it is 0. ठीक है, so that's why कि एवरेज वैल्यू की अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो एवरेज वैल्यू की जब डेरिवेशन भी की जाती है तो इट इज टेकन फ्रॉम 0 to पाई, 0 से पाई तक की ही लिमिट्स रखी जाती है, 2 पाई नहीं। अगर 2 पाई लिमिट्स रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इन अ बैलेंस्ड सिस्टम में 0 होती है। ठीक है, हाँ अगर सिस्टम ही अनबैलेंस्ड है तो जिसमें वैल्यूज पॉजिटिव में कुछ और है, नेगेटिव में कुछ और है, क्योंकि कई बार मोस्टली प्रैक्टिकल सिस्टम्स अनबैलेंस्ड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो उस केस में एवरेज वैल्यू निकल जाती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए। बट अगर बैलेंस्ड सिस्टम है हमारे पास जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव हाफ साइकिल, देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द वन हाफ साइकिल, वन अल्टरनेशन। एक अल्टरनेशन के ऊपर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, एंड द थर्ड वैल्यू इज द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इफेक्टिव वैल्यू, या तो इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं इसको या फिर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मीन्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। Okay, root mean square value. See the definition now. The RMS value of an alternating current is given by that steady current, steady means DC, is given by that steady current which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time. इस डेफिनेशन को ना जरा धीरे धीरे रीड आउट करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको धीरे धीरे रीड करो और मेरे को बताओ, फिर कोई भी बताए कि क्या समझ आया। इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस इन बीसी। जो Yes. एसी का वो करंट होएगा वो होएगा, जब ये कंडीशन हाँ, होएगी तब फिर वो आरएमएस होएगा। यस, एक्चुअली आरएमएस वैल्यू में हीट को कंपेयर किया गया। ठीक है, कि किसी भी सर्किट में अगर हम डीसी फ्लो करवा रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है, तो उसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर वही सेम हीट
AC को जब सेंड करेंगे उसी सर्किट में फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, तो दैट करंट इज रिप्रेजेंटेड एज द AC RMS वैल्यू, ठीक है, उसको हम RMS AC के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन दिस द हीट इज कंपेयर्ड, जैसे अभी आगे जाके एवरेज की वैल्यू भी ऐसी डेफिनेशन आएगी, उस केस में चार्ज को कंपेयर करेंगे, बट हियर इन दिस केस द हीट इज कंपेयर्ड इन बोथ द सर्किट्स व्हेन DC इज पास थ्रू इट एंड व्हेन द AC इज पास थ्रू इट, ठीक है, एंड दैट AC is called as the RMS value or root mean square value of that case. It is also known as the effective or virtual value. इसको effective value और virtual value भी बोला जाता है of the alternating current. The former term being used more extensively. A simple experimental arrangement for measuring the equivalent DC value of a sinusoidal current. जैसे ये दोनों circuits बनाए हैं, एक में DC source लगाया है, ठीक है, और एक में AC source लगाया है। तो सी इन दिस सर्किट्स, एक में DC सोर्स लगाया है तो DC करंट आ रहा है फॉर सम फिक्स्ड टाइम पीरियड और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। हियर इज द वाटमीटर इज कनेक्टेड, हियर एमीटर इज कनेक्टेड, ओके, और दूसरे सर्किट में AC सोर्स लगाया है। सर्किट सेम है दोनों ही, ठीक है, और सेम टाइम पे वो भी करंट हम फ्लो करवा रहे हैं AC, और जितनी हीट इसमें सेम हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज द RMS। नाउ दिस इज द डेरिवेशन फॉर द RMS वैल्यू। एक्चुअली ये डेरिवेशन अभी पहले हम ना बोर्ड पे करेंगे, ये टेक आउट योर नोटबुक्स फर्स्ट ताकि अपने हाथ से एक बार करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि सीधा हम यहीं से रीड आउट करते रहे तो वो इतना समझ नहीं आता फिर, ठीक है। Yes, take out your notebooks. Yes, derivation for the RMS value. Also very important. बहुत पेपर में अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन और इसी के साथ ही रिलेटेड सम न्यूमेरिकल। Okay, we are starting with derivation, that is RMS value. RMS means क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर। एक्चुअली यही करना है हमें, ठीक है, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर उसका रूट कर देंगे फाइनल, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ let the current I is equals to, it is given by I max sin theta, that is the equation for the instantaneous current. The instantaneous current is given by I is equals to I max sin of theta. Now therefore the mean of square, ये देखो वही चीज मैं लिख रही हूँ, that is the mean of square of instantaneous current mean of square of instantaneous current over one complete cycle is equal to, one complete cycle is from 0 to 2 pi, 0 से 2 pi तक होता है, तो 0 से 2 pi I स्क्वायर मीन करना है, पहले स्क्वायर कर दिया I स्क्वायर, अब मीन करना है इसका मतलब 2 pi माइनस 0, ठीक है, और d थीटा, ओके। क्या किया है हमने अभी? मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल इज ऑफ फ्रॉम 0 to 2 pi,
So it is I square 2 pi minus 0, 0 से 2 pi की ही लिमिट्स लेंगे एंड d थीटा. ओके, नाउ अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, रूट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट, या सीधा लिखते हैं therefore the RMS value it is given by, that is the root mean square value, इसका इसी टर्म का स्क्वायर रूट कर देंगे. 0 से 2 पाई है, I स्क्वायर 2 पाई माइनस 0, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, d थीटा एंड स्क्वायर रूट. वो माइनस क्यों लिखा है, 2 पाई माइनस 0? 2 पाई माइनस 0 लिखा है, एक्चुअली मैंने मीन दिखाया है. ठीक है, क्योंकि मेरी जो वेव शुरू हो रही है वो 0 डिग्री से 2 पाई तक जा रही है, बट आगे जाके जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे फेजर्स वाले, तो फेजर के टॉपिक में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि वेव 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो रही है. ठीक है, उस टाइम पे मे बी हमारी वेव 30 डिग्री पे शुरू हो रही है. ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर बार वेव यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट होगी. ठीक है, कई बार वेव जो है 30 डिग्री की फेज शिफ्ट पे भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे भी. तो उस केस में हमारे पास जो मीन आएगा वहां पे 2 पाई प्लस 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस 30 हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने अभी यहाँ पे ये 0 लिखा है, जस्ट टू शो द मीन, कि मीन हमारा क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू माइनस द लास्ट वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ I को पुट डाउन करना है एंड जस्ट इसको सॉल्व करना है. अभी करो जरा इसको सॉल्व, खुद से करो इसको. आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन बाय पुटिंग द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0 to 2 पाई. ठीक है, I स्क्वायर है, मतलब I की वैल्यू मुझे ये वाली पुट करनी है, दैट इज I मैक्स साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई. अभी 0 हटा देते हैं यहाँ पे, एंड हियर इट इज d थीटा. ओके, नाउ जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन एंड फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर, यहाँ पे है हमारा IRMS. You have to find the relation between IRMS and Imax by solving this equation. इसको solve करना है and get the relation. Yes. हाँ जी, करो इसको solve करो. And the final relation between RMS, IRMS is equals to Imax divided by under root 2. This is the final relation. Okay, that is IRMS is equals to Imax divided by under root 2, or it can also be written as, it is also written as 0.707 Imax. Okay, this can also be written like this, 0.707 Imax. Okay, ये derivation complete कर लेनी है अपनी notebooks पे. I'm just showing you on the बाई 2 कैसे आया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2? क्या बाई 2 कैसे आया? ये लास्ट फॉर्मूला नहीं स्टेप में. होता साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस ऑफ ओके 2 ओके. थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला नहीं होता. दिस इज अ फॉर्मूला, मैथमेटिकल तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. एक्चुअली 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वही है. जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is the complete derivation, ये जो अभी हम कर रहे थे वहां पे. So see this PPT.
where I is equals to Im sin of omega t और I में m sin theta, जिसको हमने max लिख दिया है, here it is written simply as Im. Okay. Now the mean of the square of the instantaneous values of a current over one complete cycle, the same thing जो हमने लिखी थी, that is 0 to 2 pi I square 2 pi divided by 2 pi minus 0 d theta. Now the square root of this value वो हमारा क्या बन जाएगा, RMS वैल्यू बन जाएगा. ठीक है, तो I इज इक्वल टू, जस्ट ये जो पूरा है इसको सॉल्व करना है अभी. तो पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ I, दैट इज Im sin स्क्वायर थीटा, Im स्क्वायर बाहर ले गए हैं, वो अंदर sin स्क्वायर थीटा है. तो सी दिस फॉर्मूला cos of 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया. ठीक है, सो sin स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1 minus cos of 2 theta divided by 2. Okay, so just put down the formula here and solve this integration taking the limits, and you got this answer, that is I is equals to I max divided by under root 2 and is equals to 0.707 times I max. Okay, so this is the relation between the RMS value and the maximum value of the current. Okay. So here hence we find for a symmetrical sinusoidal current, the RMS value of current is equals to 0.707 into the maximum value of current. Okay. So this is a complete derivation between the RMS value and the maximum value of the current. Just ये फुल साइकिल के लिए. हाँ जी, yes, this is for one cycle. This is for one cycle. मैं जस्ट यहाँ पे 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, जस्ट एक बार डेरिवेशन को अच्छे से देख लो, फिर हम नेक्स्ट एवरेज वैल्यू पे चलेंगे. Yes, so finally the RMS value of current is equals to 0.707 into the maximum value of current, and the ammeters and voltmeters note down the RMS value of particular current and voltage. Okay, इस बात को याद रखना है. Now next is the average value. The average value IA or I average भी लिखा जाता है कई बार. The average value of an alternating current is expressed by that steady current means DC, is expressed by that steady current which transfer across any circuit the same charge as is transferred by the alternating current during the same time. ठीक है, जैसे RMS की डेफिनेशन आई थी ना कि the same heat is produced when produced by the DC. तो here किसकी बात हो रही है, चार्ज. DC को किसी सर्किट में भेजेंगे फॉर अ फिक्स टाइम, तो जितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सेम चार्ज AC प्रोड्यूस करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर फिक्स टाइम, तो दैट AC इज कॉल्ड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट AC. तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में उसको एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू के बराबर आती है. ठीक है, तो आई एम अगेन रीडिंग इट. The average value of an alternating current is expressed by that steady current which transfers across any circuit the same charge as is transferred by the alternating current during the same time. Okay. In the case of symmetrical alternating current, symmetrical means where the positive and negative half cycles are same. That is one whose two half cycles are exactly similar. तो उसको हम symmetrical बोलते हैं. Whether sinusoidal or non-sinusoidal, the average value over a complete cycle is 0. Symmetrical cycle है तो average value 0 निकलेगी. Hence, in this case, the average value is obtained by adding or integrating the instantaneous value of current over one half cycle only. ठीक है, तो इसके लिए एवरेज वैल्यू की कैलकुलेशंस हाफ साइकिल के ऊपर ही की जाती है. बट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट, लाइक द हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, मतलब जहाँ पे दोनों हाफ सेम नहीं है, द एवरेज वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी टेकन ओवर द होल साइकिल. इन दैट केस अगर अनसिमेट्रिकल करंट्स है हमारे पास, तो हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे,
लेकिन अगर सिमेट्रिकल केस है करंट्स का तो उस केस में वी आर कैलकुलेटिंग अवर एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू द डेरिवेशन फर्स्ट फॉर द एवरेज वैल्यू। ठीक है, एंड वन थिंग मोर कि अभी जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, दिस फ्राइडे आई थिंक इज हॉलीडे, तो नेक्स्ट मंडे इज आल्सो अगेन हॉलीडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे लगेगा। तो जब भी लेक्चर लगेगा ना नेक्स्ट, तो ये डेफिनेशंस तुम लोग लर्न करके आओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स जस्ट गोइंग टू हैव सम स्मॉल वाइवा फ्रॉम एवरीबॉडी, सभी से कुछ ना कुछ डेफिनेशंस मेरे को सुनिए। ठीक है, तो ये तुम लर्न करके आओगे थोड़ा थोड़ा। So let's start with the derivation for the average value. मंडे भी हॉलीडे मैम? देखो इस फ्राइडे छुट्टी है दिवाली की, ठीक है, दिवाली से एक दिन पहले, तो नेक्स्ट मंडे भी हॉलीडे है। ठीक है, फ्राइडे से लेके मंडे तक ऑफ है कॉलेज, फ्रॉम दिस फ्राइडे टू द नेक्स्ट मंडे, मतलब इस वीक थर्सडे तक ही क्लासेस लगेंगी और फिर उसके नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो हमारी जो टर्न आएगी उसके नेक्स्ट फ्राइडे आएगी टर्न हमारी। ठीक है, तो तब ये डेफिनेशंस तुम जरूर लर्न करके आओगे सारी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज फॉर द एवरेज वैल्यू। Average value. Okay, here we are again taking the current I is equals to I max sin theta, यही लेके चल रहे हैं हम, I is equals to I max sin theta, therefore average I average is equal to I average में क्या करना है, अब हमने हाफ साइकिल के ऊपर एवरेज निकालनी है, जस्ट एवरेज निकालनी है, कोई स्क्वायर नहीं करना, कोई स्क्वायर रूट नहीं करना, जस्ट एक एवरेज का फॉर्मूला लिख देना है फ्रॉम फॉर हाफ साइकिल, दैट इज I, हाफ साइकिल मींस पाई माइनस 0। ठीक है, हाफ साइकिल मींस पाई माइनस 0 एंड ऑल्सो टेकिंग द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पे डी थीटा लगा देंगे। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व करो जरा, जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ आई हियर, 0 to pi, I can be written as I max sin of theta d theta divided by pi। ठीक है, I max और pi कांस्टेंट्स हैं तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, I max by pi is taken out, अंदर रह जाएगा लिमिट्स में, इंटीग्रेशन में 0 से पाई sin of theta d theta, just you have to solve it and take the limits from 0 to pi and tell me the answer for I average कितना आ रहा है। हो गया क्लियर? हाँ जी, हो गया सबका? So finally the I average comes out to be 2 I max upon pi, that is equals to 0.637 times I max, and see here also on the PPT the derivation is done here। यहाँ पे पर इन्होंने ना, जैसे हमने 0 से पाई ले लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने हाफ साइकिल दैट इज t/2 की लिमिट लेके चल रही है, तो यू कैन डू आल्सो लाइक दिस, ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे हमने बोर्ड पे किया तो वो भी कर सकते हो, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, इन्होंने 0 से t/2 लिया, t मीन्स फुल साइकिल। ठीक है, तो t/2 मीन्स हाफ साइकिल, पाई नहीं दिया तो t/2 लिया है, एंड सिमिलरली नीचे भी हमने नीचे पाई माइनस 0 कर दिया, तो दे डू इट एज 0 to t/2, तो दैट इज द सेम थिंग। तो तुम वो भी कर सकते हो, t/2 लेके भी चल सकते हो। तो फिर यहाँ पे तुम्हें साइन ओमेगा टी रखना पड़ेगा, ठीक है, और डी टी करना पड़ेगा, जस्ट इतना ही चेंज है।
तो यू कैन डू द डेरिवेशन लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हो या फिर जिस तरीके से ये बोर्ड पे करिए ऐसे भी कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, मैंने ये एंगुलर की फॉर्म में किया है, उन्होंने टाइम पीरियड की फॉर्म में किया। Okay, so finally I average comes out to be 2.5 multiplied by the peak value of the current, and the corresponding the same formula is there for the E also, voltage also, that is E average is equals to 2 upon pi into the peak value of the voltage. Okay, so the same formula is written. And next is the, see this small numerical. Determine the angular velocity of a sine wave having a frequency of 60 hertz. ठीक है, frequency है उसकी angular velocity निकालनी है. Angular velocity means omega is equals to 2 pi f. Just f की value put कर दी है and angular velocity comes out to be 377 radians per second. Okay. In the second example, determine the frequency and time period of a sine wave having angular velocity of 500 radian per second. अब angular velocity दे रखी है and you have to find out the frequency and time period. The same formula is there. The time period capital T, that is equals to 2 pi upon omega. So this is the answer, and frequency, that is 1 upon T. So ये formula हमने already कर रखे हैं. So next, third is the determine the average value and RMS value of the sine wave shown here. ये sine wave show की है जहाँ पे maximum value दिख रही है, that is 169.7. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ नहीं पता चल रहा। कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही? पीपीटी नहीं दिख रही है? पीपीटी नहीं दिख रही है भैया? नो मैम। हाँ जी, पीपीटी दिख रही है? नो मैम। यस मैम। बेटा तुम अपना कनेक्शन चेक करो जरा, पीपीटी बाकियों को दिख रही है? क्योंकि मैंने वही शेयरिंग खोली यस है। मैम। तुम्हें बोर्ड दिख रहा है जो भी बोल रहा था? Okay, so in this you have to find out the average value and RMS values. The corresponding formulas लगाए हैं. So V average is equals to 0.637 into V max, and the RMS is equals to 0.707 into V max. Okay, so this is the numerical, small numerical. Let's have one numerical on the board. अभी मैं तुम्हें देती हूँ एक numerical, just उसमें भी ऐसे ही different values तुमको find out करनी है. या एक दो डेफिनेशन और करते हैं पहले, फिर करते हैं. Okay, next is the there are some different factors. ये कुछ factors हैं जो कि numericals में भी ये बोले जाते हैं निकालने को. The one is the form factor. Form factor is the ratio of RMS value to the average value. ठीक है, form factor क्या होता है? This is the ratio of RMS value to the average value. So RMS value is 0.707 Vmax. ठीक है, चाहे V की फॉर्म में लिख लो या I की फॉर्म में लिख लो. And average value is 0.637 Vmax. And its value is fixed value, that is 1.11. फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1.11 ही होती है. एक तरह से ये हमारी न्यूमेरिकल्स में या हमारे वैल्यूज को चेक करने के लिए कि अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें RMS भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है, तो अगर फॉर्म फैक्टर 1.11 आ रहा है तो दैट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है, so and also this form factor has no units. इसके units कोई नहीं है, because in the numerator is also volts, in the denominator it is also volts, so it has no units.
So the value for the form factor is 1.11. Just remember this formula, क्योंकि इसके बेस पे अभी 4 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. Form factor is equals to RMS value divided by average value, and there is one another factor, that is peak factor. So peak factor is equals to maximum value divided by RMS value. Okay, so maximum value is Vmax, RMS value is 0.707 Vmax, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो this comes out to be 1.414. ठीक है, that is the square root of 2. तो RMS वैल्यू अगर सीधा ही यहाँ पे पुट कर दोगे IM Vmax by √2, तो √2 आ जाता है न्यूमरेटर में. So this is the answer, 1.414. So both these factors have no units. दोनों में ही कोई units नहीं है. ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स चलेंगे और कैंसल आउट हो जाते हैं, तो फाइनली देयर इज नो यूनिट फॉर फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. एंड वन थिंग, पीक फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड फैक्टर और क्रस्ट फैक्टर. इस पीपीटी को ना थोड़ा सा नोट डाउन जरूर कर लो, बिकॉज इसके आगे एंड पे जो मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे उसमें है ये क्वेश्चंस है. ठीक है, तो पीक फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड फैक्टर और crest factor. Okay, the value for form factor is 1.11, peak factor is 1.412. Okay, now let's have one numerical first. अभी एक numerical करते हैं पहले ना. Yes. The value for current is induced current is given as instantaneous current, that is 42.42 sine of 628 t, and you have to find a part maximum current, that is I max. इसके मेरे को आंसर्स बताते जाना बाद में. Then frequency, then C part, RMS value, then D part, average value, and then E part, form factor. Yes. So this is the numerical, simple numerical is there. Just give me the answers. Yes, what is I max? 42.42. Yes, the I max comes out to be, this one is the I max. ठीक है, इसको अगर हम बेसिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, so this one is our I max, that is 42.42 amperes. इसके यूनिट जरूर बोलने हैं साथ में. 42.42 amperes. This is the I max. Yes, what is the frequency? 100. 100 आगे? Hertz. Hertz. It is the 100 hertz. Now RMS. 0.707 times 42.42. Give me the answer. अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखो, अभी एक और न्यूमेरिकल करवाना है, कैलकुलेटर्स चाहिए तुम्हें. $30. Yes, the RMS comes out to be 30. आगे? Ampere. Amperes. यूनिट जरूर लिखने हैं और यूनिट जरूर बोलने हैं, इसी के नंबर कट जाते हैं यूनिट नहीं लिखते हो तो. ठीक है, नाउ व्हाट इज एवरेज?
26.7246. दोबारा बोलो। 26.7246. हाँ ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आंसर 27 है, जस्ट 27 एम्पियर्स। तुम्हारा भी ठीक है, 26.7 आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्म फैक्टर 1.11. यस, इट इज द रेशियो RMS टू एवरेज। ठीक है, RMS और एवरेज को डिवाइड कर देना है एंड यू गॉट द आंसर एज 1.11। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगेगा। ठीक है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। लेट्स हैव वन मोर न्यूमेरिकल। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था। आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस। हो गया सबका? Yes, ma'am. यस एवरीबॉडी, गर्ल्स हो गया सबका? आवाज नहीं आती है और किसी की भी? जस्ट 2 ही स्टूडेंट्स की आवाज आती है मेरे को बार बार। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। यस, फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, जस्ट आई एम राइट डाउन द वैल्यू जो भी गिवन है डाटा। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। frequency is given 50 hertz and RMS current given है, it is IRMS, it is given as 25 amperes. Okay, and you have to firstly करना क्या है? A part, write equation for instantaneous current. Write the equation for instantaneous current. Instantaneous current की equation लिखनी है, and then B part, find current at t equals to 0.0025 seconds. ठीक है, and C part, find the time at I equals to 14.14 amperes. कैलकुलेटर्स चाहिए तुम्हें, सो कैलकुलेटर्स अपने लेके बैठना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन, RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट, then in the B part you have to find out the current at t equals to this, then in the C part you have to find the time, वो टाइम निकालना है जिसके ऊपर करंट की ये वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कैलकुलेट करना। फर्स्ट केस में टाइम कितना है? T. फर्स्ट केस में नहीं, फर्स्ट केस में जस्ट यू हैव टू गिव मी द इक्वेशन। इक्वेशन देनी है तुम्हें। ठीक है, इक्वेशन मतलब करंट है तो I इज इक्वल्स टू I मैक्स साइन ओमेगा टी की फॉर्म में इक्वेशन देनी है। ठीक है, जिसमें तुम्हें ये निकालना है, I मैक्स निकालना है और ओमेगा निकालना है, ओमेगा। इस फॉर्म में यू हैव टू गिव द आंसर फॉर फर्स्ट A पार्ट। I note 35.35. And omega? 314. Yes, for the answer for the A part is, it can be written as I is equals to 35.35 sine of frequency कितनी आ रही है? Sorry, omega कितना आ रहा है? 314. Yes, it is 314t. This is the answer for the first part, and this is the equation for instantaneous current. Ma'am, current at t equals 0.0025 is 25 ampere.
कितना दोबारा बोलो. बी नंबर का 25 एम्पेयर. Yes, yes, correct. Here the answer for B part. This is for A part. Answer for B part. Current comes out to be 25 amperes. Yes, correct. Actually ये 25 कैसे करना है? It is just 35.35 sine of 314 into t. T is 0.0025 multiplied by 0.0025. इसको सॉल्व करना है. ये सॉल्व करके देखो, आता है 25 ही आ रहा है 0.785 आ गया ये सोल्व करके. है ना. तो इसको ऐसे नहीं करना, इसको तुम you can write it साइन ऑफ इसी फॉर्म में लिखेंगे 2 पाई f की फॉर्म में. इट कैन बी रिटन एज 2 पाई f इज 50 into 0.0025. ठीक है, अब करो इसको सॉल्व. नाउ अब तुम्हारा आंसर आएगा 25. मतलब ये भी देखना है कि किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो दिस न्यूमेरिकल इसको साइन ऑफ 2 पाई f इंटू 0.0025 करोगे. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे एंड देन यू गॉट दिस एज 25 एम्पियर्स. ओके, और इन द सी पार्ट ऑल्सो, सी पार्ट में भी यही तरीका रहेगा. Yes, for the C part, क्या आंसर आ रहा है? In the C part, you have to find out the T. T निकालना है. Current is given, that is 14.14. दिख रहा है कि नहीं? मैम सी पार्ट का 0.0013 सेकेंड. 0.0013 सेकेंड. यस, वेरी करेक्ट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इसको भी 2 पाई f किया तुमने? 2 पाई f लेके चले हो या नो मैम, 114 लेके चले हो? 1 में रख के निकाल दिए. जो जनरल इक्वेशन निकाले हैं ना फर्स्ट वाले में, हाँ जी, उसी में सिंपली रख के निकाल दिए हैं. मतलब यही इक्वेशन को यस मैम. तुमने लिखा है इसको 14.14 इक्वल्स टू, बोलो जरा आगे. 35.36 साइन साइन 100 पाई टी. अच्छा 100 पाई किया ना तुमने? यस मैम. 314 नहीं ना लिया, तो पाई को क्या पुट किया फिर? पाई का 22/7 रख दिया मैम. 22/7 या 180? नो मैम, टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से साइन इनवर्स ऐसा किए. 14.14/35.35 करके साइन इनवर्स ले लिए. ओके, और उसके बाद से वो पाई को निकाले हैं साइन फंक्शन को हटाने के बाद. यहाँ पे तुमने 2 पाई f किया तो तुमने 100 पाई टी. 100 पाई वही हो गया ना, इंटू 50 और t को ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, यस ये मैम. क्या? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ से तुमने पहले इसको डिवाइड कर दिया, तो योर साइन ऑफ 100 पाई t इज इक्वल्स टू कितना आया? 14.14 डिवाइडेड बाय 35.35. कितना आंसर आ रहा है इसका? 0.3998. मेरे यहाँ पे 0.4 आंसर है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ना कई बार स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पे 100 पाई t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 0.4.
एंड दिस कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ 0.4, ये आ रहा है मेरे पास 23.58 डिग्री, ये इतना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। एंड देन इट कैन बी रिटन एज, यहाँ से हमें t निकालना है, तो दिस इज, इसको क्या किया तुमने फिर आगे, इधर तो डिग्री है, मैम मैं उसको साइन इनवर्स 0.3998 बाई 100 पाई करके उधर टी रख दिए और पाई की जगह पे 22/7 रख के निकाले मैम। नहीं इसको ऐसे ही रहने दिया 23.58। एक्चुअली मैम वो हम निकाले ही नहीं, सब एक ही बार में कैलकुलेटर पे रख निकाल दिए हैं। Okay. Otherwise, it can be calculated as 23.58 divided by 100 pi. तो pi को यहाँ पे I think so इसको 180 लेंगे क्योंकि डिग्रीज में है ना, ये भी डिग्रीज में है, तो it can also be written in the form of degrees. तो इसका सॉल्व करोगे तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 23.5 it is the same, that is 0.00131 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आएगा ये, बाकी तुम्हारा भी ठीक आ रहा था, सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट बी पार्ट में आंसर। वैसे भी आंसर आ रहा है, जो हाँ जी, फर्स्ट लाइन लिखी है वैसे क्या भी आंसर आ रहा है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या, जो फर्स्ट लाइन लिखी ना बी पार्ट की, हाँ जी वैसे भी आ रहा है आंसर। आ रहा है इस तरीके से भी। हाँ जी मैम। नहीं यहाँ पे पाई तुमने क्या लिया है, 22/7 मैम मैंने लिया है। ना सेटअप में ही रेडियन रख के सब कैलकुलेशन अगर रखे हैं। 3.14 लोगे ना तो फिर तो सेम ही है, whether you write it as 314 और अगर पाई को, मैं जस्ट ये चेक करना चाह रही हूँ कि पाई को 180 तो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में ये पाई को 180 नहीं किया, यहाँ पे 314 ही रखा है, ठीक है, 3.14 ही रखा है, तो जस्ट वो चीज चेक कर लेना। बी पार्ट में यहाँ पे आंसर है हमारा 25 एम्पियर्स और यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 0.00131, ठीक है। तो these जरूरी are- है 2 पाई भरना है? हाँ ये 2 पाई भरना जरूरी है? कहाँ पे, जो हम सेकंड लाइन लिखी है बी ये पार्ट की। वाला, यस मैम। नहीं नहीं, अगर इसी से आंसर आ रहा है तो ये नहीं लिखोगे ना स्टेप, ये नहीं करोगे फिर तुम, हटा दो इसको, ये फर्स्ट वाली लाइन के बाद ये जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है, तुम्हारे पास आंसर निकल आएगा। तो सी वो भी पार्ट क्या था? सी पार्ट पार्ट ये वाला है, दिस इज द सी पार्ट। इन द सी पार्ट द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन, करंट गिवन है और हमें टाइम निकालना है, ठीक है, तो जस्ट वही इक्वेशन ली है हमने, बट इस टाइम पे इस इक्वेशन में मैंने पाई को 180 लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे जब मैंने साइन इनवर्स को सॉल्व किया तो मेरे पास डिग्रीज में आया ये आंसर, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 23.58 डिग्रीज, और उसके कारण मैंने जब ये 100 बाई से डिवाइड किया तो मैंने पाई को 22/7 नहीं लिया, मैंने उसको 180 डिग्रीज लिया, ठीक है, तो उसके कारण एंड माय आंसर इज दिस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इन द बुक, दैट इज 0.00131, ओके। अभी एक इसका मैं क्वेश्चन ना तुम्हें एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी देती हूँ, वो तुम बाद में ट्राई करना, बट पहले हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम पोल्स लेते हैं पहले, ठीक है, जस्ट फिर मैं तुम्हें वो क्वेश्चन एक डिक्टेट कर दूंगी और वो तुम कर लेना बाद में। Now let's have some polls first. Here's the first poll, first question, और इस फर्स्ट पोल में 3 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, 1 2 और 3 क्वेश्चन खुलेंगे लाइन वाइज और थ्योरी क्वेश्चंस है और फटाफट आंसर देना, डोंट टेक मोर देन 3 मिनट्स।
Yes, I am going to close this poll. Yes. And the first question is, in a sinusoidal, let me share the results first. Yes. In a sinusoidal wave, the average current is always dash the RMS current. So the correct answer is less than. Okay, less than the RMS current. देखो average में जो formula आ रहा था हमारे पास that is 0.637 कुछ था, ठीक है, और times I max और RMS में 0.707 था, ठीक है, so RMS value ज़्यादा होती है as compared to the average. The peak है, इसको peak factor भी बोला जाता है. So the correct option is this D part. Okay. And third question is the average value of current over a half cycle is 0.67 Imax. Okay, so the first option, this is the correct. Okay. Yes, let me share the second question. And the second question also has, second poll also has 3 questions. Yes, it's there on your screen now. It also consists of 3 questions. And in the first question, calculate the crust factor if the peak value of current is 10 ampere and the RMS value is 2 ampere. Okay. And the correct option is the first option, that is 5. Okay. ये जो third जिसने भी टिक किया है, तो 5 ampere actually crust factor के कोई units नहीं होती. Okay. It's not in the amperes. So the correct option is 5. A part is the correct option. Second question, ammeters and voltmeters are calibrated to read RMS value. So ammeters or voltmeters जो reading देते हैं हमें, that is the RMS value of that particular current or voltage. Okay, and in the third question, which is not a frequency for AC current, so the correct one is the 0 Hertz. 0 is the frequency for DC. ठीक है, DC की हम बोलते हैं कि 0 Hertz. ठीक है, मतलब कोई फ्रिक्वेंसी नहीं. सो इस केस में एसी में पॉसिबल है, ये तीनों ही फ्रिक्वेंसीज पॉसिबल है, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबल है. ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आर देयर इन द डिफरेंट कंट्रीज. सो द करेक्ट आंसर हियर इज द लास्ट ऑप्शन 0 हर्ट्ज. ओके. एंड मैम सेकंड का इंस्टेंटेनियस नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा, अमीटर और वोल्टमीटर गिव्स अस द सिंगल वैल्यू एंड दैट इज द आरएमएस वैल्यू. इंस्टेंटेनियस नहीं होती, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं निकाल सकते हैं. आरएमएस वैल्यू, हाँ, आरएमएस वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको याद भी रखना क्योंकि आगे जाके कई बार ना ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस. बड़ा कॉन्सेप्ट बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, नाउ जस्ट नोट डाउन वन न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल तुम जस्ट नोट डाउन करना, ठीक है, और इसको घर में प्रैक्टिस करना निकालने की. ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है. जस्ट वांट टू कि तुम ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स मैं तुम लोगों के साथ आज शेयर करूंगी. बुक की एक्चुअली इस चैप्टर की पीडीएफ है नहीं मेरे पास, तो मैं देखती हूँ बना लेती हूँ आज, तो फिर तुमसे शेयर कर दूंगी ये चैप्टर. Yes, the readings that are given in this numerical. Sinusoidal alternating current of frequency is given as 60 Hertz. Frequency given here 60 Hertz has a maximum value of 15 amperes. I max दिया हुआ है, that is 15 ampere, and
find A part first. A part में write down the equation for instantaneous value. Equation for instantaneous current. सेम इक्वेशन लिखनी है तुम लोगों को करंट की. बी पार्ट, वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/200 seconds. Value of current after 1/200 seconds. Then C part, time taken to reach 10 amperes. 10 amperes के corresponding time निकालना है. And then D part, average value of the current. Okay, so this is the question. Yes, that's it. इसको solve करना है. And just note down the answers for this also. ठीक है, इसके answers भी, ताकि तुम इसको tally कर पाओ. First तो equation ये तो आ जाएगी तुम्हारी. जो second part का answer है, that is value of the current after 200 seconds. This answer is 14.27 amperes. यहाँ पे लिखनी दिख रही है. This one is 14.27. ठीक है. 14.27 amperes is the answer for second part, and for the third part it is for C part 0.001936. 0.001936. Okay, and the answer for the last part is D part, average value. This one is 9.55 amperes. Okay, so these are the answers, and just try this numerical at your place and verify your answers with this. So ये कर लेना है numerically. And before starting the next lecture, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम फेजर्स से स्टार्ट करेंगे. ये पीपीटी कंप्लीट जितनी भी बनी है मेरी, ये मैं तुम लोगों के साथ आज शेयर करूंगी. एंड वन इज द हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस चैप्टर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें पूरे चैप्टर के. और जितना हमने टॉपिक किया है ना, उतना तुम अपनी डेफिनेशंस लर्न करके आओगे, जितनी भी डेफिनेशंस आए, ठीक है, तो वो लर्न करके आओगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर तो हम 10-15 मिनट थोड़ा सा वो डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाइवा फ्रॉम योर साइड. ठीक है, सो अप टू दिस एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड?